بریک کے بعد خوش آمدید. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جو مہمان. مختلف موضوعات پر بات ہو رہی ہے. اب ہم بات کریں گے جو کہ دیکھا گیا کہ کچھ عرصے میں ملک میں جبراً جو ریپ کیسز ہو گئے, یہ کیوں, یہ جو ایک ذہنی ایک کیفیت ہے انسان کی, اور ان کے لیے قانون کتنا سخت وفاقی حکومت بنا رہی ہے اور صوبے اس میں کس قدر ہیلپ کر رہے ہیں کہ ان چیزوں کی روک تھام کے لیے وہ کیا کر رہے ہیں. ممتاز صاحب, اس کے لیے آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ آپ دیکھ رہے ہیں سندھ ہو, KPK ہو, پنجاب ہو, آئے دن ہمیں اس طرح کے کیسز سننے کو ملتے ہیں. ہاں بالکل حقیقت ہے. اس میں تو بڑا دکھ کی بات ہے کہ ایسے ہمارے مسلم ممالک میں, پاکستان میں اس طریقے کے بہت سارے کیسز ملتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ تمام گورنمنٹس نے, جیسے جنرل مشرف کی گورنمنٹس میں بھی ایک بل پاس ہوا تھا اور اس کے لیے بڑا پروٹیکشن کا, وومین پروٹیکشن ایکٹ کا بل پاس ہوا تھا. اس کے بعد دوسری گورنمنٹس نے بھی اس طریقے سے پاس کیا ہے. ابھی ریسنٹلی گورنمنٹ آف پاکستان, ہمارے لاء منسٹری نے بھی ایک جو ہے آرڈیننس, ہم بل تو ابھی تک پاس نہیں کر سکتے, لیکن ایک آرڈیننس کے طرف سے ایک جو ہے اس کی جو ریپ کا کیس ہے, جو جبرن ریپ ہے, اس میں لائف امپریزمنٹ کی جو ہے سزا ہم نے رکھی ہے. اور دیکھیں, ہم قانون تو بناتے ہیں, قانون بنا ہوا بھی ہے. اس وقت اگر ہم کہیں کہ ہمارے پاکستان میں لاء نہیں ہے, بالکل اس کی پروٹیکشن کے لیے لاء ہے, لیکن امپلیمنٹ نہیں ہو پاتا. کچھ وجوہات دوسری بن جاتی ہیں, کچھ شواہد نہیں ملتے, کچھ دوسری چیزیں آ جاتی ہیں, تو پھر اس میں تھوڑی سی مشکلات پیش آتی ہیں. تو میرے خیال میں کہ ہماری گورنمنٹس, جو بھی گورنمنٹس ہو, پروونشل ہو یا وفاقی گورنمنٹ ہو, اس پہ اچھے طریقے سے اگر ہم صحیح طریقے سے اگر قانون کی پکڑ ہم اگر کر لیں نا, تو قانون ہمارے پاس موجود ہے, تو اس طریقے کے واقعات نہیں ہوں گے. ایک اور چیز دیکھی گئی کہ بہت سارے, ابھی آپ کو بھی 2.5 سال سے زیادہ کا عرصہ ہوا ہے, مطلب ابھی ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ بالکل اینڈ پہ چل رہے ہیں, آرڈیننس کی آپ کو ضرورت پڑ جاتی ہے. وائی؟ مطلب آپ یا تو ایک جمہوری رویے کے ساتھ, یا تو آپ اپوزیشن کو ایکسیپٹ کریں, ایک یہ جمہوری ایک ہمارا حسن ہے ایک سیاست کا, یا تو آپ مطلب یہ کہ آرڈیننس پہ اگر چلیں گے تو ایک جمہوری حکومت ہے. کل آپ سے پوچھا جائے گا کہ پھر یہ قومی اسمبلی کس کے لیے ہے؟ یہ جو عوام کے نمائندے بیٹھے ہیں, ان کو تو پتہ ہی نہیں آرڈیننس حکومت نے جاری کر دیا, آپ ان کو اعتماد میں کیوں نہیں لیتے؟ بس انشاءاللہ تعالی مارچ کے بعد جو ہے آرڈیننس کی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ کو پتہ ہے کہ سینیٹ میں جو ہے ہمارے نمبرز کم ہیں, اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ لیجسلیشن ساری جو فائنلائز ہوتی ہے وہ سینیٹ سے ہوتی ہے, تو اس وجہ سے لیجسلیشن نہیں ہو سکتی. تو اس وقت کے لیے ہمیں جو ہے آرڈیننس کا سہارا لینا پڑتا ہے. عادل صاحب, اگر ایوان بالا میں بھی اگر وفاقی حکومت آ جاتی ہے, جیسے سینیٹ کی طرف اشارہ کیا ممتاز گوپانگ صاحب نے کہ سینیٹ میں بھی اگر PTI کی حکومت آ جاتی ہے, تو پھر تو آرڈیننس اور اپنی پسند کے قانون. میں ان کی ایک بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ مارچ تک کی ضرورت نہیں پڑے گی آرڈیننس کی, چونکہ مارچ سے پہلے جو مارچ ہو رہا ہے نا, یہ حکومت کو لپیٹ لے گا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے بات کی آرڈیننس کی, دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم تو ڈے فرسٹ سے کہہ رہے ہیں کہ یہ ناڑی ہے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے. سلیکٹڈ ایک حکومت, آپ نے ایک بانمتی کا کنبہ, تمام پارٹیوں سے نکالے ہوئے لوگ آپ نے بٹھا دیے لا کر, اور پھر آپ دیکھیں نا 2.5 سال سے, یہ اس سے بڑی کیا بدترین مثال ہوگی کہ پارلیمنٹ کو ربر سٹیمپ بنا دیا انہوں نے. یہ جس آپ صدر صاحب کی, ظاہر محترم میں صدر ہیں, صدر پاکستان میں بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں, ظاہر کرنی بھی چاہیے, مگر آپ دیکھیں بدنصیبی ہماری کہ ان کے پاس ایک اتنی امپورٹنٹ سمری آئی سائن ہونے کے لیے ایکسٹینشن والی, تو وہ میڈیا کے آپ کے ہی دوست تھے, انہوں نے پوچھا جی کہ آپ کے پاس وہ سمری آنے والی ہے, اور یا آ کے جا چکی ہے, ان کو پتہ ہی نہیں تھا, علم ہی نہیں تھا. یہ آرڈیننس بھی اسی طرح خود ہی جاری کرتے ہیں جنہوں نے ان کو بٹھایا ہوا ہے, کیونکہ پارلیمنٹ کے اندر ان کی یہ صلاحیت نہیں ہے کہ یہ اپوزیشن کو ساتھ لے جا کے ملا کے دیکھیں نا. اس سے پہلے بھی تو حکومتیں تھیں, پیپلز پارٹی نے بھی تو 5 سال پورے کیے, ہماری آپ نمبر دیکھیں کیا تھے. ہم نے بھی تو آغاز حقوق بلوچستان کیا, ہم نے بھی 58(2)B کو واپس پارلیمنٹ کو اختیارات دیے نا, ہم نے بھی تو لیجسلیشن کی. آپ آئیں نا, میں بتاتا ہوں آپ کو خواتین کے حقوق کے لیے کتنی لیجسلیشن ہوئی ہے. پھر آپ کمپیئر کریں باقی صوبائی حکومتوں کو, پیپلز پارٹی کی جو صوبائی حکومت ہے, ہم سب سے الحمدللہ بہتر ہیں لیجسلیشن میں. آپ مجھے بتائیں نا, پنجاب میں بزدار صاحب نے کتنی کوئی کام کیا ہے خواتین کے حوالے سے یا کسی بھی حوالے سے لیجسلیشن جو ہے, لیکن ایک نہیں کر سکے. ایک بات, آپ اگر کراچی سے باہر آپ جائیں, مختلف اضلاع میں جائیں, اگر عمارتیں دیکھیں آپ گورنمنٹ اسکول کی, تو خستہ حال ہیں,
वहाँ पे फर्नीचर बहुत जगहों पर मुयसर नहीं है, और इवन यहाँ तक कि स्कूलों में पढ़ाई तो नहीं हो रही लेकिन वहाँ पे शादी की तकरीब हो रही है। तो आप तीसरी बार साहिब इक़्तिदार हैं सिंध में, तो आप इन चीज़ों को अभी तक क्यों नहीं रोकथाम? मैं आपसे इस बात को एग्री करता हूँ, और मैं ये भी नहीं कहता कि सब दूध और शहद की नहरें हमने बहा दी है गुंजाइश काम करने की, मजीद चीजें बेहतर हो सकती हैं, मगर जो एक महदूद वसाइल है ना, जिसके अंदर रहकर सिर्फ एजुकेशन पे तो नहीं है ना, और भी मसले हैं इस मुल्क के, जितना एक महदूद बजट है, मैं ये चैलेंज करता हूँ कि जितना बेहतर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने डिलीवर किया है, बाकी सूबों में आपको परफॉर्मेंस नहीं मिलती। आप देखें ना, एक BRT इन्होंने बनाया, शुरू कहाँ से हुआ और अभी तक आज तक मसाइल का ही शिकार है। फिर ऑरेंज लाइन को देख लें, और ऐसे मंसूबे जो खसारे के। तो इस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत बेहतर है, चाहे वो हेल्थ की सहूलतें हो। चलें, अब आदिल साहब मैं पहले आपसे आपके पास ही आता हूँ। महंगाई का जिन बोतल में नहीं जा रहा, वफाकी हुकूमत बहुत इकदाम कर रही है, चीनी बाहर से भी आ रही है, चीनी की प्राइस कंट्रोल नहीं हो पा रही, पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं, अशिया खुर्दनोश आवाम से दूर हो गई। क्या अपोजिशन की जमातें नहीं चाह रही कि वफाकी हुकूमत आइनी मुद्दा पूरा करे? क्या आप लोगों पर ये फ़र्ज़ नहीं है, मैं वफाक से भी पूछूंगा, कि आप लोग कम अज़ कम इन चीज़ों पे तो हुकूमत का साथ दें, क्योंकि जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन आपकी है, यहाँ पे ज़िलाई सतह पर लोग आपके हैं, कमिश्नर आपके हैं, क्या आप अपने सूबे में तो इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं? अच्छा, मुझे ये बताएं कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की चारों सूबों में हुकूमत है? फिर मुझे बताएं, जिस शुगर माफिया और बाकी माफिया का जिक्र करते हैं इमरान खान साहब, वो लोग कहाँ हैं? इनके दाएं बाएं बैठे हुए हैं। कहाँ है जहांगीर तरीन? पकड़े ना उसको। आज तक कहाँ गई वो रिपोर्ट, इन्वेस्टिगेशन हुई आज तक उसके ऊपर? आज तक इनके अपने लोगों पे जो केसेस बने हुए हैं। देखिए, बात ये विल की बात होती है। अपोजिशन को आप उस वक्त जब साथ लेकर चलते हो ना, तो उसके लिए पार्लियामेंट के अंदर या बाहर आपको एक माहौल बनाना पड़ता है, या रिफॉर्म्स की हो। ठीक है, मैं वफाक से इस पे टेक लेता हूं, आप वफाक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। महंगाई कंट्रोल अभी तक आप लोग नहीं कर पा रहे, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक अंडे का दर्जन भी 200 तक जा पहुंचा है, तो मतलब गरीब आदमी अंडे की पहुंच से भी दूर होता जा रहा है। क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रहे? टाइगर फोर्स आप लोगों ने मुतारिफ करवाई कि वो गली मोहल्लों में, वो गंदम के गोदामों में, हर जगह पे जाएगी, देखेगी कोई स्टॉक तो नहीं कर रहा। ये जिन क्यों नहीं आपसे कैद हो रहा? देखें, पहले तो ये मेरा भाई उसकी BRT की बात कर रहा है, और BRT चलो बंद तो गई और चल भी रही है ना। तो हमारी जो यहाँ पे हमारे माशाल्लाह इतना बड़ा शहर है कराची, मुझे ये बताएं कि आपने कितनी BRT यहाँ पे बनाई है? कराची का बुरा हाल आप लोगों ने किया हुआ है। 15 साल हो गए आपको गवर्नमेंट ने, मैं और कराची का गंद की सारे ढेर बनाए हुए हैं। हैदराबाद वाली BRT का भी हमें पता है, वहाँ पे भी जो हाल है। सक्खर की BRT भी हमें पता है, सारे हाल हॉस्पिटलों का भी पता है, और स्कूलों का भी हाल जो हमने देखा है। बजट तो वही मिल रही है। भाईजान देखें, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो बड़ी हैवी चीज़ है, मैं समझता हूँ कि किसी भी तरीके से वफाकी गवर्नमेंट को अपनी कोई भी चीज़ें बारूकार ला के इसको महंगाई के जिन को बोतल में डालना होगा, और डालना पड़ेगा। कैसे? और कोई पॉलिसी, ठीक है, कोई लेजिस्लेशन, आगे स्ट्रेटेजी? लेकिन इसमें दो चीज़ें। इसमें मैं एक चीज़ बताऊंगा कि सारी चीज़ें जब हम डाल देते हैं वफाक के ऊपर ना, तो कुछ जिम्मेदारियां हमारी भी होती हैं, कुछ जिम्मेदारियां प्रोविंशियल गवर्नमेंट की भी होती तो है। अपना काम देखें, मेरी बात सुने। देखें, मार्केट कमेटी किसके पास है? मार्केट कमेटी के रेट्स किसके पास है? जिसमें आपके टोटल सब्जी, फल, सारी चीजें आ जाती हैं। इसके सिंध गवर्नमेंट के पास है। बलूचिस्तान में किसके मैं पास है? आपसे पूछ रहा हूँ ना, सिंध गवर्नमेंट में किसके पास है? ठीक है, आप मुझे बताइए। ठीक है, आप आ जाए। तीन सूबों में मैं कह रहा हूँ कि आपके पास यहाँ पे कराची में आटा कितने का बिक रहा है, और KPK में कितने का बिक रहा है? आप बताएं। मैं बताता हूँ कितने का बिक रहा है? आपके पास 700 का, वहाँ पे 450 रुपए का बिक रहा है। मैं आपको बताता हूँ ना। तो ये क्या हुआ? गंदम आटा वहाँ पे आपके पास नहीं कर रहा है, स्मगल कहाँ से हो रहा है, किस रास्ते से हो रहा है? इसका मकसद ब्लैक क्यों सिगरेट में कौन पैसे कमा रहा है? मुझे बात करने दें, आप मुझे मेरी बात तो करने में कंप्लीट करने में आता हूं आपके दिल साहब। मैं कह रहा हूं कि गंदम के ऊपर किसका है? आप सिंध गवर्नमेंट उसकी सारी जिम्मेदार है, पूरे पाकिस्तान की वफाक कोई जिम्मेदार थोड़ी है। अगर वही आटा 550 रुपए का, 500 रुपए का बिक रहा है पंजाब में, और यहाँ पे 700 रुपए का बिक रहा है, लेकिन यूटिलिटी स्टोर्स पर भी रेट इतने वो नहीं है अभी तक। मतलब चीनी के रेट फिर 75 और 80 तक आ गए। यही चीनी 55, 60, 65 तक थी। तो यूटिलिटी स्टोर तो आप देख रहे हैं। इसमें एक जो हैवी प्रेशर है ना, हमें मानना पड़ेगा। कुछ चीजों को हम इस तरीके से भी, हमें पूरी दुनिया इस महंगाई की लपेट में आ गई है।
पूरी दुनिया इस कोविड के बाद उसकी जो है मईशत डीस्टेब्लिश हो गई है। इस तरीके से हमारे पाकिस्तान का भी यही हाल है। थोड़ा सा इसको थोड़ा आप 6 महीने दे दें, इंशाल्लाह ताला 6 महीने में सारी चीजें कवर हो जाए। चलें जी, 6 महीने का टाइम मांग लिया पहले उन्होंने 90 फिर। days, अच्छा आदिल साहब first 90 दिन मांगे मैं थे आपकी तरफ उन्होंने, आऊंगा। फिर 100 देखिए, दिन, फिर- वफाकी हुकूमत स्ट्रगल कर रही है, चीजों पे काम कर रही है, चाहे नया पाकिस्तान स्कीम हो, चाहे हेल्थ कार्ड हो, ठीक है, अप्रिशिएट करना चाहिए जो जो इनके अच्छे काम हैं, ठीक है। हमारी विश ये है कि समर आवाम तक जाए। आप क्यों नहीं एडमिनिस्ट्रेशन जो अथॉरिटी है, जैसे इन्होंने आप पे ब्लेम लगाया कि सूबों में आप हमारी हेल्प करें, कम से कम आप आवाम के लिए, आप तो कम से कम, एक होता है ना कि ब्लेम गेम पॉलिटिक्स जैसे हमने देखा कराची में होती रही है कि जी एमक्यूएम ने किया, ये फलां पार्टी ने किया, आप लोग यहाँ पे बड़े भाई का किरदार ही अदा कर लें। सर बड़े भाई का किरदार कहाँ अदा करें? 12 करोड़ का सूबा है पंजाब, हुकूमत इनकी है, बलूचिस्तान में हुकूमत इनकी है, केपी में इनकी है। एक सूबे को आप बार बार टारगेट बना रहे हैं। हम तो हर सतह पे इनके साथ बैठ के मिल के चलने के लिए तैयार है। आप मुझे पंजाब का बताएं ना, वहाँ क्या सारी चीजें ठीक हैं? केपीके में सारी चीजें ठीक हैं? ये जो रिपोर्ट आई थी, आटा सारा कहाँ से स्मगल हो रहा था? चमन के रास्ते और इसके रास्ते जो है आपका तुलखम के, ये कौन लेके जा रहा है अफगानिस्तान आटा? यहाँ कोई सिंध के लोग लेकर जा रहे थे। और चीनी कहाँ गई? चीनी में पैसे किसने कमाए, दिहाड़ी लगाई? ये सारी इन्वेस्टिगेशन करना, मैं कहता हूँ अगर कोई नहीं, इसमें तो इदारे आजाद हैं, इदारे आजाद है ना, खुदमुख्तारी, करें। इदारे अगर आपको खुदमुख्तार लगता है हैं। कोई सिंध में, देखे ना, इससे पहले भी आपने कितने रेफरेंसेस बनाए, सियासी है। विक्टिमाइजेशन, 600 अरब 800 अरब, लोगों ने तो सुना ही सलीम नहीं था। मांडीवाला साहब आप के भी मुझे रेफरेंस बताया दायर हो आपने गए। रिकवरी कितनी की, लोगों की आपने तजलील की। आप तो, मैं समझता हूँ ये डिक्टेटरशिप का दौर था, उससे भी मैं बदतरीन दौर इसको समझता हूँ। आज की स्टेटमेंट है 2 महीने दे वजीर दें। आजम इमरान खान साहब की, जनरल मुशर्रफ को उस वक्त की माफियाज ने काम नहीं करने दिया, लेकिन मैं वो काम और वो जो गोल्स हैं वो अचीव कर लूंगा। कैसे देखते हैं इस स्टेटमेंट को? देखिए, स्टेटमेंट तो ऐसे होती है ना, मैं समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट रही हो और उसने कोई अच्छे रिफॉर्म्स लाए हो, तो हमें हर उस हुकूमत की उस अच्छी चीज़ों को मानना चाहिए, फिर कोई भी गवर्नमेंट हो। इस तरीके से अगर मुशर्रफ की गवर्नमेंट थी तो उस वक्त जो सिस्टमिकल तरीका था, उस वक्त 6,000 अरब रुपए का कर्जा था और दूसरी चीज़ें बहुत सारी सही तरीके से यहाँ पे इस्टेब्लिश हुई। और उसने जो एक बड़ा अच्छा, जो मैं अब वही तनकीद पे हम आ जाते हैं, उसने एक बड़ा अच्छा जो एक चीज़ दी थी, देखिए उस चीज़ को हम अभी भी मानते हैं कि उसने एक अच्छा बल्दियाती निज़ाम दिया था। उस अच्छे बल्दियाती निज़ाम में काउंसलर के पास भी बजट होती थी। यहाँ पे जो हमें कहते हैं कि आप डोमिनेसी करते हो, आप डिक्टेटर बन गए हो, आप लोग अपनी डिक्टेटरशिप तो ख़त्म करो ना। आप लोगों ने अभी बल्दियाती निज़ाम को ऐसा, ये जो अभी हमारा 4 साल का बल्दियाती निज़ाम गुजरा, आप मुझे बताएं इसमें आपने क्या दिया? कराची के मेयर के पास क्या अख्तियारात थे? लाड़काना के मेयर के पास क्या अख्तियारात थे? बजट आपके पास है, आप पैसा आप नहीं खर्च करोगे। बल्दियाती निज़ाम देखो, जो अच्छी चीज़ें जो भी गवर्नमेंट लाए उसको हमें मानना चाहिए। और इमरान खान ने भी ऐसी स्टेटमेंट दी होगी कि उसकी जो अच्छी चीज़ें होंगी और उनको उन्होंने अप्रिशिएट किया होगा। आप कैसे देख रहे हैं देखिए पीएम जी, साहब की इस स्टेटमेंट को? बल्दियाती निज़ाम की बात की, थोड़ा सा भाई है मेरे, मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, चीज़ों को स्टडी भी करना चाहिए। हमारा तो टेन्योर अभी खत्म हुआ ना, पहले जो लोग इलेक्टेड थे, आप उठा के देखें ना मेयर के पास, ये तो आपके दोस्त है ना, इनके खिलाफ तो बात नहीं करेंगे आप। पहले ये गद्दार थे, इनके साथ आप नहीं बैठते थे, जिस फोरम पे एमकेएम होगी वहां पीटीआई नहीं जाएगी। आज ये बड़े नफीस लोग हैं, आपके साथ बैठे हुए हैं, वफाकी जवाब दे, वो अलग चीज हो गई। तो बल्दियात का जो एक इलेक्टेड मेयर था, हमने अरबों रुपया उसको जो सिंध गवर्नमेंट ने दिया, वो कहाँ लगा? आप उससे भी सवाल करें ना। फिर आप मुझे बताएं, टेन्योर सबसे पहले पंजाब में खत्म हुआ, आज तक आपने इलेक्शन कराए? डिक्टेटरशिप, तो ये सवाल तो आपसे बनता है। बाकी 3 सूबों में कराए ना, आप रोल मॉडल बनाएं, वहां बल्दियाती निजाम एक खड़ा कर दें, जो एक हम भी कहें जी कि बातें चल रही है सर, पीएम साहब कह रहे हैं कि एक अच्छा एक निजाम लाएंगे। एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद बात करेंगे फॉरेन फंडिंग के हवाले से और पीडीएम की जो इस वक्त जल्द से जुलूस उनके रुक नहीं रहे, आगे क्राइसिस से मुल्क गुजर रहा है, क्या हिकमत अमली होगी हुकूमत की? ब्रेक के बाद।